Hello everyone, my name is Shyam Manawat and I welcome all of you once again in the series of permutation and combination. In today's lecture, we are going to discuss about combination, selection. And I hope you have gone through all the previous lectures. Before we start, I would like to appreciate all of you to have patience and dedication for learning. चलो शुरुआत करते हैं देखते हैं कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है एंड हाउ डू वी यूज इट इन द एक्चुअल क्वेश्चंस. So, selection, combination means what? Selection. Wherever we have selection, we are going to apply combination. Now, the number of ways our object can be selected from n distinct object is can be expressed by NCR. The formula of NCR is n factorial by r factorial into n minus r factorial. ये हमारा फॉर्मूला है. ओके, लेट्स टेक एग्जांपल. इजी एग्जांपल है शुरुआत में. दिस ऑल आर कॉन्सेप्ट बिल्डर लेक्चर्स. तो कॉन्सेप्ट बिल्डर लेक्चर्स में हम लोग बेसिक क्वेश्चंस की बात करेंगे. हमें फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग करना है, उस पर ध्यान देंगे. ओके, फिर हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी करने वाले, हार्ड क्वेश्चंस भी करने वाले इन द प्रैक्टिस सेट. तो अभी इस पे ध्यान दो. How many ways a committee of 7 members be chosen from 10 people? So total यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? You need to select from 10. How many members do you need to select? 7. तो ये क्या हो जाएगा? NCR मतलब 10C7. एक्सप्रेस कैसे करोगे इसको? 10 factorial by 7 factorial into 10 minus 7, which is what? 3 factorial. Simplify कर सकते हो आप. Closest factorial तक expand करो. 10, 9, 8 and 7 factorial is there in the denominator. ये हो गए cancel. Yeah, so you got 10, 9, 8 divided by 3 factorial. इसको आप और simplify कर सकते हो. करें क्या simplify? कर लेते हैं. वैसे देखो, इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे. हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम एनसीआर को समझे, कॉम्बिनेशन को समझे, सिलेक्शन को समझे. ऑलराइट, okay, so 3 factorial is what? 3, 2, 1, 3 3s are 2 4s are 4 2s are 12 into 10 कितना हो जाएगा? 120. So there are 120 ways. Okay, कैलकुलेशन ठीक है दोस्तों, बट आपको ये अप्लाई करना है फॉर्मूला. ओके, ये वाला पार्ट यहाँ तक भी आना चाहिए, बिकॉज एक्सप्रेसिंग अप टू द क्लोजेस्ट और एक्सपांड अप टू द क्लोजेस्ट फैक्टोरियल एंड कैंसिल दैट. ओके, यहाँ तक आना चाहिए. तो नेक्स्ट टाइम हम लोग उसको थोड़ा शॉर्ट में लिखने की कोशिश करेंगे. मैं बताऊंगा आपको. सिलेक्शन का फॉर्मूला तो आया ना. कुछ प्रॉपर्टीज हमें ध्यान रखना है. NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग. NC0 या फिर NCN, इसका वैल्यू होता है 1. NC1 और NCN माइनस 1 इज इक्वल टू N. ओके, और एक और बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, इसको देखो. इफ यू हैव NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3, ऐसा चल रहा है हमारा. दिस इज इक्वल टू 2 raised to n. ये भी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना चाहिए. NC0 से NCN तक ऐड करोगे तो दैट इज इक्वल टू 2 to the power n. ओके, मतलब सपोज इफ यू हैव n से 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 plus 5C5, that can be written as what? 2 to the power 5, which is what? 32. Okay, ये property है. Okay, let's take more examples. Out of 5 men and 6 women, in how many ways can uh, a committee of 2 men and 3 women be selected? Easy है. And conjunction मतलब क्या? Multiply लगाने वाले. So out of 5 men, if you want to select 2 of them, so it should be 5C2. And out of 6, you want to select 3 of them, so it should be 6C3.
ओके, बाकी आप एक्सपांड करके सिंप्लीफाई कर सकते हो। फॉर्मूला लगाने आ रहा है आपको? फॉर्मूला लगाना आ रहा है ठीक से? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, सो फर्दर इफ यू सिंप्लीफाई, चलो मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। हालांकि मुझे सिर्फ यही सिखाना है इस लेक्चर में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, that how to apply NCR formula in selection. So how do you solve this? 5 factorial by 2 factorial into 5 minus 2, which is 3 factorial, multiply by 6 factorial by 3 factorial, and 6 minus 3 is again 3 factorial. अच्छा, ये 3 2s are 6 मत कर देना यार ऐसा। Don't cancel without simplifying the without solving the factorial notation. Okay. Further, let's expand till the closest one, which is 3 factorial here. 2 factorial is 2, 3 factorial को as it is रखते हैं, which we can cancel, and 6 को भी simplify करते हैं, 6 4 नहीं 6 5 4 and then 3 factorial, and this we can say 3 factorial into 3 factorial. Again, if we cancel, it's easy. Okay, और simplify कर सकते हो, this 3 factorial can be written as 3 factorial का वैल्यू कितना होता है 6, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, राइट? नाउ ये 2 कैंसिल हो गया यहाँ से। Yeah, I think we are almost done. So we have what? एक थोड़ा नीट एंड क्लीन करके लिख देता हूँ, 5 2 5 4, ये हो गया 10, ये हो गया 20, तो आंसर कितना आ गया 200. So there are 200 ways we can form this committee by given number of men and women. Okay, चलिए, अब यहाँ तो मेन वुमेन का एग्जैक्ट नंबर दिया था, so 2 men and 3 women. But what if it's not exact number? What if it is at least वाला कंडीशन? Okay, so देखो कैसे डील करेंगे। Look at this example. So the question is, out of 5 men and 6 women, in how many ways can a committee of 5 members be selected? Total 5 members are required, such that at least 3 members are women. At least 3 members are women. मतलब 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, but at least 3 are women. Understood? So हमें ध्यान देना है that they should be at least 3 women. Condition है, तो वहीं से शुरुआत करेंगे। So we have 6 women, and out of which we can select 3 at least. So let's say in this particular case we select 3. Okay, चलो मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। हम यहाँ ऐसा बोल सकते हैं, in such case that we can have 3 women and total 5 members are required, so 2 men, or we can have 4 women and a man, or we can have all 5 as a women and 0 men. Okay, इस तरह से कुछ बनना चाहिए। और के लिए मल्टीप्लाई, एंड के लिए सॉरी, और के लिए प्लस, एंड के लिए मल्टीप्लाई, राइट? नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस। सो आउट ऑफ 6 women, if you select 3, so it should be 6C3, and out of 5 men you're selecting 2. This is your first condition. You got a committee of 5 members this way, 3 women and 2 men. Or it could be out of 6 women you are selecting 4 of them, and out of 5 men you're selecting only 1, right? Out of 6 women you select all 5 as women only, and that's how you get a condition of, अच्छा 0 को select करने का कोई मतलब नहीं है, so we are not using this. So I hope you got this explanation correctly. तो सोल्यूशन समझ में आया, आई होप समझ में आया। एटलीस्ट 3 women, सो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। सो क्या कंडीशन हो सकती है? 3 women, 2 men, 4 women and a man, and all 5 are women. ओके, यस, आई होप दिस इज क्लियर। इसको सिंप्लीफाई, देखो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट जैसा मैंने कहा कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये समझने पे होना चाहिए, फोकस ये समझने पे होना चाहिए, हाउ टू अप्लाई एनसीआर इन द सिलेक्शन कंडीशन। सो आई होप दैट इज क्लियर। क्लियर है? बाकी तो फॉर्मूला आप लगा सकते हो एनसीआर। हाँ, मैं आपको आंसर फाइंड करने के लिए नहीं कहूंगा यहाँ पे,
मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारा फोकस एनसीआर का एप्लीकेशन सीखने के ऊपर है। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए वी हैव क्वेश्चंस, वील हैव कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, वील हैव प्रैक्टिस क्वेश्चन। वहाँ पे हम ऑप्शंस को मैच करने के लिए सिंप्लीफाई भी करेंगे, तो टेंशन लेने का नहीं। ओके, एनसीआर पे ध्यान देने का। नाउ वन मोर एग्जांपल आई हैव। In a room, there are 20 men. Each man shakes hand with every other man. How many shake hands are possible? How many handshakes are possible? How many handshakes are possible? How many handshakes are possible? अब इसका इस क्वेश्चन का सिलेक्शन से क्या क्या रिलेशन है? सोचो ध्यान से। To have a proper handshake, you require two people. How many you have? 20 of them. So how many handshakes are possible? It's simple. 20. See, 2 out of 20. We just need to we just need to see in how many ways I can select 2 men out of 20 for a second, right? ओके, सो क्या होना चाहिए 20 से? ये समझ में आई है? हाँ, देखो एप्लीकेशन समझना ज़रूरी है, सिम्प्लीफाई आप कर सकते हो। So this is a question of selection again, right? चलो और एग्जांपल देखते हैं। Out of 5 men and 6 women, in how many ways can a committee of 5 members be formed such that at least one member is a woman? ठीक है? अब ध्यान से समझो उसको। तो क्या आपको सॉल्व करना तो आता है आपने, ये सेम ही है इस तरह से, एटलीस्ट 3 वुमेन बोलो, एटलीस्ट 1 वुमन बोलो, बात तो एक जैसा ही है। हाँ? तो एक तरीका तो आपका आता है। एक और तरीका हो सकता है, वो मैं बताता हूँ आपको। सो हियर यू हैव, आप ऐसे कर सकते हो, यू हैव अ कंडीशन फॉर वुमेन टू बी सिलेक्टेड। सो मैं आपको एक इक्वेशन, एक एक्सप्रेशन मैं आपको लिख के बताता हूँ, एंड देन विल अप्लाई एनसीआर, ओके? So if I use the same method, at least 3, यहाँ at least 1 के लिए, तो क्या वो गलत होगा? बिल्कुल नहीं, अच्छा है, बिल्कुल करेक्ट मेथड है। देखो, so out of 6 you select, say, a woman here, then you need to select 4 men, or you can select 2 women, and you need to select, in that case, 3 men to form a committee of 5 members। या फिर क्या हो सकता है? You have 3 women and here you have 2 men। या फिर क्या हो सकता है? You got 4 women and only a man। या फिर क्या हो सकता है? You got all 5 women। Okay, these are the possibilities। सही है? अब ये दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, मतलब only because this question has at least one, only because this question has at least one, इसको हम लोग बोल सकते हैं all combinations minus none। ये हम किस केस में कर सकते हैं? देखो, इससे भी आंसर करेक्ट आएगा, ये भी आंसर करेक्ट देगा, बिकॉज़ बोथ आर करेक्ट सॉल्यूशन, करेक्ट करेक्ट अप्रोच। 1 माइनस 1, सोचो आप, all minus 1। So all combinations, you make all combination where you have all women, none women, on everything, all possible, and minus you calculate what? Possibility of having none of them as women. If you subtract this possibility, what you will get? What? At least 1। Yeah, do you agree? ऐसा कुछ फॉर्मूला है? नहीं, फॉर्मूला नहीं है, ये तो अप्रोच है एक। आप एक अप्रोच के जैसे देखो इसको। Now because this question says at least 1 woman, that's why we can apply। at least 3 के लिए ये अप्लाई नहीं कर सकते। ओके? at least 3 के लिए ऐसा कुछ देखने जाएँगे तो then it will become as complicated as finding the direct combination। Yeah, so डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ले लो इस in that case। यहाँ पे ये डायरेक्ट
जो कॉम्बिनेशन है उससे इजी पड़ रहा है। सी यू यू हैव गॉट ओनली टू कैलकुलेशन हियर। हियर यू गॉट 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटीज, राइट? विल बी इजी। सो ऑल पॉसिबिलिटी कैसा होगा? ऑल पॉसिबिलिटी कैसा होगा? सबको मिला लो। सो हाउ मेनी टोटल पीपल आर देयर, ऐसा देखो। 5 + 6 टोटल पीपल कितने? 11। आउट ऑफ 11 यू नीड टू सिलेक्ट हाउ मेनी ऑफ देम? 5। ये टोटल पॉसिबिलिटी है विदाउट एनी कंडीशन, करेक्ट? इसमें से अगर आप माइनस करोगे ना, नन ऑफ देम आर वुमेन, मतलब यू आर सिलेक्टिंग ऑल 5 मेंबर्स फ्रॉम मेन। हाउ मेनी मेन? 5 मेन। सो 5 मेन में से 5 सबको सिलेक्ट कर लिया ताकि हमें women ना सिलेक्ट करना पड़े। In that case, it will be 5C5. If you simplify this, you will get what? A condition of at least one woman. At least one woman. Okay? क्लियर है? मैं फिर से बोलता हूँ, आप इस अप्रोच से भी सॉल्व करोगे ना, पहले वाले अप्रोच से, और ये अप्रोच जो आपने लिया है सेकंड वाला अप्रोच, पहला वाला अप्रोच, ये दोनों इक्वली है। दोनों से सेम ही आंसर आने वाला है। ओके? इट्स जस्ट दैट सेकंड वाला अप्रोच थोड़ा ईज़ी दिख रहा है। क्लियर? पहले वाले अप्रोच से कैसा होगा वो? कैसा दिखेगा? 6 वुमेन 1 सिलेक्ट करो, 5 में से 4 सिलेक्ट करो। 6 में से 6 women, select 2 of them, and out of 5 men, select 3 of them. Or out of 6, select 3 of them, and out of 5 men, select 2 of them. Or out of 6 women, select 4 of them, and out of 5 men, select only 1. Or out of 6 women, select 5, all 5. आप ये सिंप्लीफाई करो इक्वेशन नंबर 1, एक्सप्रेशन नंबर 1, या फिर आप एक्सप्रेशन नंबर 2 सिंप्लीफाई करो, आंसर दोनों इक्वल देंगे। क्योंकि दोनों सेम ही तो अप्रोच है, मतलब सॉरी, दोनों सेम ही तो कंक्लूड करता है, अप्रोच अलग-अलग है। ओके? दिस यू कैन डू इन केस ऑफ एट लीस्ट 1। और देखते हैं, चलो और समझते हैं, और एग्जांपल। फॉर्मूला वही है, एनसीआर, अलग-अलग एग्जांपल्स हम लोग देख रहे हैं, और एग्जांपल, ताकि हमारी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनसीआर। नाउ हियर यू हैव इन अ probables for for the team, 16 probables for a team. There are 6 bowlers, 2 wicket keepers, and rest are batsmen. So how many batsmen are there? 2 and 6, 8, 16 में से 8 गया तो कितने बैट्समैन बचे? 8 बैट्समैन बचे। Okay. In how many ways can a team of 11 be selected such that one keeper and at least 5 bowler are chosen? ठीक है, निकाल देते हैं। आपको टोटल चाहिए 11 और यहाँ पे एटलीस्ट 5 बॉलर्स हैं। सो बॉलर्स के लिए कंडीशन है, विकेट कीपर के लिए नहीं है, राइट? सो देखते हैं क्या डिफरेंस आएगा। Now, when you solve, you need to keep in mind that for wicketkeeper, it is not at least one, it is one. So there is only one. It's not about at least. And for batsman, there is no condition given. So batsman can be any number. Yeah, see, at least 5 बॉलर का इफेक्ट पड़ेगा किस पे? बैट्समैन के सिलेक्शन पे। विकेट कीपर एक ही होना चाहिए। इट्स नॉट एटलीस्ट वन, मतलब इसमें ऐसा नहीं कि 2 विकेट कीपर भी हो सकते हैं। क्लियर है? सो हाउ विल यू मेक द कॉम्बिनेशन? पहले मैं आपको लिख के बताता हूँ, देन वी कैन ऑफ कोर्स जंप ऑन एनसीआर। आपको डायरेक्ट एनसीआर के फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखना है, वो भी कर सकते हो। आई विल अप्रिशिएट दैट बिकॉज़ सेव टाइम। सो वी हैव 6 बॉलर्स, 2 विकेट कीपर एंड 8 बैट्समैन। वी नीड एट लीस्ट 5 बॉलर्स। तो या तो 5 बॉलर हो सकता है या फिर 6 हो सकता है, 2 ही कंडीशन बनेंगे। या बिकॉज़ मैक्सिमम 6 बॉलर्स हैं, राइट? सो वी ऑलवेज स्टार्ट विद अ कंडीशन given to us. So out of 6, you select 5 bowlers, and out of 2 wicket keepers, you select 1। कितना हो गया? 5 + 1, 6। तो आपको चाहिए कितना? 11। That means how many more players are required? 5 more players are required. From where will you get those 5 players? From batsmen. Okay? This is one possibility.
Or you can say out of six batsmen, out of six bowlers, you select all of them because you need at least five. So it can be more than five also. And acha, wicket keeper pe there is no compromise. You can select only one. Now, because you have selected six bowlers, you need to select how many? 6 plus 1, 7. 11 में से 7 minus करो 4. So you can select only 4 batsmen. Then only you will have the total of 11 players. Number of players should not be more than 11. So these are the only two possibilities. Now you can simplify this and come to the conclusion. Okay. Again, objective is to see how do we apply NCR, right? Which I hope you are learning. Okay. एक और एग्जाम्पल, एक और क्वेश्चन है, एक और एग्जाम्पल है. यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस आउट. कर सकते हो खुद से भी एक बार ट्राई. Deepak has a choice of 8 different perfumes. In how many ways can he choose at least one of them? At least one. अब इसमें all minus none वाला तो है ही नहीं पॉसिबिलिटी, राइट? ऑल चूज करने माइनस ऐसा तो कुछ है नहीं. अब यहाँ पे 8 डिफरेंट परफ्यूम्स है और सिर्फ परफ्यूम्स ही हैं. इट्स नॉट अबाउट ग्रुप्स. यहाँ पे जैसे हमें वुमेन के लिए ना ग्रुप दिया हुआ है ना, मेन वुमेन ग्रुप दिया हुआ है. यहाँ पे ऐसा नहीं है. इट्स ओनली परफ्यूम एंड वी नीड टू सी how can he select at least one, right? So अब क्या हो सकता है? Out of 8 he can select one, or out of 8 he can select two. At least one चाहिए ना? So 1 या 1 से ज्यादा. Or out of 8 he can select 3, or out of 8 he can select 4, or out of 8 he can select 5, or out of 8 he can select what? 6, or out of 8 he can select 7, और आउट ऑफ 8 ही कैन सेलेक्ट 8. अब ये ऐसा सब एग्जाम में लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे ना. अब देखो, एटलीस्ट 1 या फिर 0 से लेके 1 तक अगर अपन देखें, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके ऑल तक, सॉरी 0 से लेके ऑल तक. सपोज इफ ही हैज चॉइस नॉट सिलेक्ट एनी वन ऑफ देम, तो वो क्या पॉसिबिलिटी होती? 8C0. अब एक बात बताओ, अगर मैं 8C0 से काउंट करूं 8C8 तक, तो एक फॉर्मूला बनता है ना. क्या बनता है बताओ? 2n. ऐसा बनता है. बट क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे एटलीस्ट 1 चाहिए, मतलब ये आपको यहाँ नहीं होना चाहिए. तो ये कहाँ होना चाहिए? टू दी अदर साइड. टू दी अदर साइड, राइट? सो यहाँ पे 8C1 से लेके 8C8 तक, if I add all the terms, it's supposed to be 2n, which is possibility of selecting neither of them, like 0 of them to all of them. Okay, minus 8C0. अच्छा, NC0 कितना होता है? रिमेंबर NC0 कितना होता है? NC0 is 1. हमने प्रॉपर्टी में देखा था. आई होप आपने ये प्रॉपर्टीज लिख ली हो. NC0 इज हाउ मच? 1. सो 8C0 को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्टली से 1. सो 2 raised to 8. 2 raised to 8 is what? 256. And this is what? -1. So 8C1 selecting at least 1 out of 8 is equal to 255. That is your answer. Okay. So I hope you understood the use of NC0 till NCN equal to 2 raised to n, where and how you can apply this. Okay, so I hope NCR, ये NCR का आपको समझ में आ गया हो. Where to apply, how to apply, सिलेक्शन में कैसे लगाते हैं, एटलीस्ट में कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं. I hope this is all clear to you. This is it in today's lecture. My name is Shyam Manawat signing off. I will see you in the next lecture. तो रुकना नहीं है, और एक लेक्चर है जिसमें हम लोग बहुत स्पेशल केसेस देखने वाले हैं सिलेक्शन या अरेंजमेंट के. So stay tuned. I will see you in the next lecture. Till then, stay happy, stay healthy, and keep learning. Bye bye.